students, today I am going to explain you the fifth chapter of business studies of class 11, that is emerging mode of business. As we are now a technological based country and we are using technology every way and everywhere, today I am going to tell you about the e-business. E-business is electronic business, the business which is being done by using the technology, computers, internet, etc. As usual, as in the usual business, business has two divisions, subdivisions, which are trade and e-commerce. Same way, e-business has also two subdivisions. One is e-trade and second is e-commerce, and they all are functioning in the same way, the way it is being done in the traditional business, but the only difference is all the work is being done through internet or computer. There is no physical place where the customer and the businessman meets. Now, scope of e-business. First is B2B business, that is business to business commerce. When a businessman is interacting with the vendors or suppliers, as they are the part of the channel of business in the distribution or distributing the goods to the customers, it is known as e-business. See, as we know, as we are discussing, that there is no physical place where the customer can go physically and purchase the things. All the work is being done through the internet only. कोई फिजिकल जगह नहीं है, जैसे नॉर्मल मार्केट होता है, शॉप्स होती है जहाँ पे कस्टमर जाता है और अपने पसंद की चीज़ें लेके आ जाता है. ऐसा कोई भी फिजिकल प्लेस नहीं होता. थ्रू इंटरनेट ही सारा बाइंग एंड सेलिंग, बाइंग एंड परचेजिंग होता है. और ई बिजनेस में जो बिजनेसमैन होता है वो क्या करते हैं, वो सप्लायर्स, वेंडर्स को ये असाइन करते हैं, ये काम असाइन करते हैं कि जैसे ही कोई ऑर्डर प्लेस होता है, ये फर्दर बिजनेसमैन दूसरे सप्लायर्स और वेंडर्स को ये काम दे देते हैं कि हर एक प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर के पास डिलीवर हो जाए, डोर टू डोर डिलीवरी हो जाए. उसके लिए कस्टमर को किसी शॉप में जाने की ज़रूरत नहीं है. थ्रू इंटरनेट ही सारा बिजनेस हो जाता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एज वेल एज ट्रांजैक्शन ऑफ मनी. बस व्हाट इज देयर कि आपके प्रोडक्ट, आपका जो प्रोडक्ट है वो विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम आपके गिवन एड्रेस में पहुंच जाता है. And the second scope of e-business is B2C commerce. Now, what do you mean by B2C commerce? Business to customers, where no agent is required. See, हमने क्या पढ़ा? Business to business में पहला किसी एक बिजनेस फर्म को कस्टमर ऑर्डर देता है, फिर वही बिजनेस फर्म दूसरे बिजनेस को ड्यूटी असाइन कर देता है एज अ एजेंट कि वो कस्टमर का सामान जो है उसके घर तक डिलीवर करके आ जाए. बट जो B2C कॉमर्स होता है, इसमें देयर इज नो एजेंट और देयर इज नो वेंडर और देयर इज नो सप्लायर बिटवीन द बिजनेस एंड द कस्टमर. द बिजनेस is directly supplying the goods or the product to the businessman और टू द कस्टमर. फॉर एग्जाम्पल, आपके मूवीज हो गए, म्यूजिक हो गए, ये आपके ऑनलाइन ही थ्रू लिंक जो है, वेन एवर द कस्टमर इज परचेजिंग सच आइटम्स थ्रू इंटरनेट ही उनको लिंक भेज के ये सामान खरीद लिया जाता है. और सेकेंड एग्जांपल इज वो बुकिंग ऑफ ऑनलाइन टिकट. जब भी हम कोई ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं, हमको कोई, आपने एयर टिकट बुक करवाया, आपने कोई रेलवे टिकट बुक करवाया, आपको फिजिकली उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या फिर कोई आके आपके घर में भी वो टिकट डिलीवर नहीं करता. वो आपके पास थ्रू मैसेज, थ्रू ईमेल आपके पास टिकट्स पहुंच जाते हैं, और जो बाद में आपके शो करवाने से टीटी के पास या एयरपोर्ट में उससे आपका काम बन जाता है. तो दैट स्कोप ऑफ बिजनेस, दैट is known as B2C business, where no agent is needed. Another example of B2C business is ATM. And
इससे आपका क्या होता है, इससे डायरेक्ट आपका प्रमोशन भी हो जाता है, एडवर्टाइजमेंट भी हो जाता है, उसमें आपको कोई बैरियर नहीं आता. सेकेंड इज C2B कॉमर्स. हेयर कस्टमर टू बिजनेस कॉमर्स. इट इज अ प्लेस where the customer has full right to ask or to call the organization on their toll free numbers and inquire about their doubts and clear their queries, or if they are having any complaint regarding any problem regarding any product, they can directly call to the customer care number, which is toll free of any organization, and they get the free assistance from that organization. Under this C2B commerce, the customer has full right to choose their product. उनको कोई भी नहीं बोलता आपको क्या लेना है, क्या खरीदना चाहिए. कस्टमर अपना जांचने परखने के बाद उसके को पूरा राइट होता है कि वो अपना प्रोडक्ट खुद पसंद करे, और उसके लिए वो एनी टाइम जो है ऑर्गेनाइजेशन के कस्टमर केयर नंबर में, विच इज़ अ टोल फ्री नंबर, उसमें कॉल करके अपने क्वेरीज, कंप्लेंट्स को बारे में, प्रोडक्ट के बारे में इंक्वायर कर सकते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस. नाउ द थर्ड इज इंट्रा बी कॉमर्स, वेयर द एम्प्लॉयज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स of same organization are interacting with each other through technology only. See, as we know that in business many departments are involved, like finance department, sale and purchase department, production department, and insurance department, advertising department, marketing department. So through intra B commerce क्या होता है कि rather than एक डिपार्टमेंट का कोई एक पर्सनली दूसरे डिपार्टमेंट में जा रहा है कुछ पूछने के लिए, वो बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी, बाय ईमेल, बाय ऑनलाइन चैट, दे कैन टॉक टू ईच अदर थ्रू इंट्रा बी कॉमर्स. यहाँ पे डायरेक्ट फेस टू फेस कम्युनिकेशन होने के जगह एम्प्लॉयज का, दे आर यूजिंग द टेक्नोलॉजी टू इंटरेक्ट विथ ईच अदर. हर एक एम्प्लॉय एक दूसरे से बात करने के लिए फिजिकली एक दूसरे से ना मिलके थ्रू टेक्नोलॉजी जब वो बात करते हैं, दैट इज नोन एज इंट्रा बी कॉमर्स. नाउ अदर फीचर ऑफ इंट्रा बी कॉमर्स इज बिजनेस टू एम्प्लॉयज फीचर्स. It refers to the interaction of business with the employees through technology. See, अब कोई मैनेजर जो है कोई एम्प्लॉय से बात करना चाहता है, तो अगेन दे डोंट नीड टू मीट फेस टू फेस, दे कैन टॉक टू ईच अदर through technology, through internet also. And nowadays, as India is so much developing and every of the country is developed, they are not even calling the person for the interview personally, they are even talking to the employee through this technology only. कोई भी जिसको भी इंटरव्यू देने आना होता है, अब आज की डेट में इतना ज़्यादा डेवलप हो गया है कि जिसको भी इंटरव्यू देने आना होता है, कैंडिडेट भी डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आता है, उससे भी थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उसका रिक्रूटमेंट, इंटरव्यू, सिलेक्शन सब थ्रू इंटरनेट ही हो जाता है. अब ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी कैंडिडेट को जॉब लेने के लिए पर्सनली आने की ज़रूरत नहीं है. और नॉट ओनली जॉब लेना, जॉब लेने के बाद जो भी ट्रेनिंग और आपका डेवलपमेंट, कोई भी उसके बाद कोई इंटरव्यू कुछ भी होता है, सब थ्रू ऑनलाइन हो जाता है. नाउ VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इसका मतलब होता है employees can work from anywhere at their own speed and time convenience, and they can have online meetings and conferencing also. See, इसका जो बिगेस्ट एग्जाम्पल है nowadays is the video conferencing. As we know that India or the whole world is going through a disaster, that is
कोरोना वायरस, और इसमें हमें बार बार बोला जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ये नहीं है कि लोगों ने अपने काम करना बंद कर दिए. सी एज यू पीपल आर देयर एट योर प्लेसेस, स्टिल योर क्लासेज आर देयर. कोई ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है, कोई आपको वीडियो बना के भेज रहा है, बट यू आर कनेक्टेड विद द स्कूल. एंड आप लोग फिजिकली स्कूल में प्रेजेंट हो या ना हो, बट आप लोग थ्रू दिस टेक्नोलॉजी आप लोगों के पास टाइम टू टाइम स्टडीज भी, आपके लेसन प्लान्स भी पहुंच रहे हैं, आपके पास सारी इंफॉर्मेशन भी पहुंच रही है स्कूल की. एट द सेम टाइम यू आर गेटिंग दी योर होमवर्क ऑल्सो. दिस इज नोन एज VPN, जहाँ पे थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग वगैरह हो जाती है. अपने हिसाब से हर एक बंदा अपना काम कर सकता है, जो जहाँ पे भी है उसको फिजिकली कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है. थ्रू टेक्नोलॉजी जब एक एम्प्लॉय कहीं पे भी रहते हुए अपना काम कर लेता है, दैट इज नोन एज VPL, एंड द फुल फॉर्म इज वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क. And the fourth and the last scope of e-business is C2C commerce. C2C commerce is where a customer is selling his own goods to other customer. जब कोई अपना एक पुराना कोई आइटम किसी दूसरे कस्टमर को, एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को बेच देता है, दैट इज नोन एज कस्टमर टू कस्टमर बिजनेस. एंड द एग्जाम्पल इज OLX. आपको पता है उधर एक कस्टमर अपने चीज़ का डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट देके अपना सामान बेच दे सकता है, एंड दिस इज नोन एज कस्टमर टू कस्टमर, जहाँ पे किसी भी दूसरे उसको बिजनेसमैन को इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं. एक कस्टमर ही अपने सामान को दूसरे कस्टमर को डायरेक्टली सेल ऑफ कर दे सकता है. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल बिजनेस एंड ई-बिजनेस. Procedure including setting up the business is difficult. See, ट्रेडिशनल बिजनेस में एज आई एम टेलिंग यू, आपको सब कुछ फिजिकल होना चाहिए. आपको एक फिजिकली एक सुंदर सी, अगर इफ यू आर सपोजिटली टेक द एग्जांपल ऑफ अ ड्रेस शॉप, ठीक है, कोई किसी की कपड़ों की दुकान है, उसको अपने कपड़ों की दुकान को बहुत सुंदर से सजा के सारी चीज़ों को डिस्प्ले करना पड़ता है सो दैट कस्टमर उनके पास है. वेयर एज ई-बिजनेस में ये ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है. इट्स वेरी इजी. आप अपने ऑनलाइन अपनी चीज़ों का एडवर्टाइजमेंट कर दीजिए, उधर से ही कस्टमर अपनी चीज़ पसंद कर लेगा. आपको कोई आपके पास फिजिकली आएगा भी नहीं, वो ऑनलाइन ही ऑर्डर प्लेस कर देगा, आपको सिर्फ उसको पहुंचाना है. तो एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस, ई-बिजनेस इज मच मोर इजियर टू सेट अप. नाउ फिजिकल प्रेजेंस, एज आई हैव सेड कि ट्रेडिशनल बिजनेस में ज़रूरत है, वेयर एज ई-बिजनेस में इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. लोकेशन रिक्वायर्ड, एज टोल्ड यू, ट्रेडिशनल बिजनेस में एक फिजिकल लोकेशन की ज़रूरत है, वेयर एज आपका ई बिजनेस में ऐसे किसी भी फिजिकल प्लेस की ज़रूरत नहीं है. फिफ्थ वन इज ऑपरेटिंग कॉस्ट. आपका ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत ज़्यादा ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है, क्योंकि आपको प्रोडक्शन, स्टोरेज, एक प्रॉपर सेटअप की ज़रूरत होती है. वेयर एज आपका ई बिजनेस में ये आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत कम होता है, क्योंकि आपको इन सारी चीज़ों का कोई खर्चा नहीं है. अच्छा, नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट विद द सप्लायर्स एंड कस्टमर्स. सी, इनडायरेक्ट थ्रू इंटरमीडिएटरीज लाइक होलसेल एंड रिटेलर्स. यहाँ पे जो है प्रोड्यूसर डायरेक्टली कस्टमर को कांटेक्ट नहीं करता है. जैसे कोई शॉपकीपर है, आप सोच लो, टेक द एग्जांपल ऑफ वुडलैंड कहीं पे प्रोड्यूस कर रहा है, उन्होंने अपने स्टोर्स खोल रखे हैं और आपको फिजिकली उनके स्टोर्स में जाना पड़ता है, और जिन्होंने वो स्टोर्स को, जो एजेंट्स है, उनके थ्रू ही आपको परचेज करना पड़ता है. और ये जो है ई बिजनेस में आप थ्रू डायरेक्टली प्रोड्यूसर से सामान खरीदते हो, तो आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है. नेचर ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन, यहाँ पे टॉप आपका जो ट्रेडिशनल बिजनेस में होता है, उधर हर एक मैनेजमेंट के साथ का सबका इंटरेक्शन होता है, वेयर एज ई बिजनेस में ऐसा कोई इंटरेक्शन नहीं होता. नाउ एट्थ इज रेस्पॉन्स टाइम फॉर कस्टमर मीटिंग
कस्टमर इंटरनल रिक्वायरमेंट इसका बहुत लॉन्ग होता है ट्रेडिशनल का, वेयर एज ई बिजनेस में इंस्टेंटेनियस ऑन द क्लिक ऑफ अ माउस। उसमें जो है आपको ट्रेडिशनल बिजनेस में समझाना पड़ता है, ये है वैसा है, इसका क्या क्या खासियत है, बट ई बिजनेस में आप सारे ही फीचर्स ऑलरेडी आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड दिए हुए थे, तो सिर्फ कस्टमर को एक क्लिक करना होता है और उसका ऑर्डर प्लेस हो जाता है। नाउ द 9th वन, शेप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वर्टिकल ड्यूटी, जॉब पोजीशन एट डिफरेंट लेवल। इसके बहुत सारे अलग अलग पोजीशन होते हैं, तो इसका वर्टिकल होता है, वेयर एज ई बिजनेस का हॉरिजॉन्टल होता है, क्योंकि इधर जो है डायरेक्ट कमांड होते हैं एंड कम्युनिकेशन होता है। जो है डायरेक्ट ही बिजनेसमैन के साथ कमांड हो रहा है, कस्टमर का कम्युनिकेशन होता है, तो इधर कोई हायरार्की नहीं होता है। बिजनेस प्रोसेस एंड लेंथ ऑफ द साइकिल, इसका लॉन्ग प्रोसेस होता है, वेयर एज इसका शॉर्ट प्रोसेस होता है। अपॉर्चुनिटी ऑफ इंटरपर्सनल टच, यहाँ पे मच मोर स्कोप। सी यहाँ पे जो होता है, जब कस्टमर किसी शॉपकीपर के पास आता है तो उसका लगाव हो जाता है एक शॉपकीपर का और कस्टमर का एक दूसरे से, एज दे आर मीटिंग ईच अदर पर्सनली। उनका शॉपकीपर और कस्टमर का एक दूसरे से लगाव हो जाता है, और इसी लगाव के लिए कस्टमर जो है बार बार एक शॉप में जाना पसंद करता है। एंड ई कॉमर्स में ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई लगाव नहीं होता, जहाँ पे भी बेटर डील मिलती है कस्टमर वहीं पे जाता है। अपॉर्चुनिटी ऑफ फिजिकल प्री सैम्पलिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स, सी in traditional business it can be easily done. Why it is easily done? क्योंकि आप जो भी सामान है, as you are physically present there, कोई भी सामान है आप उसको छू के, देख के, परख के आप ला सकते हो। whereas ई बिजनेस में आप ये चीज नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप कोई सामान तब पसंद कर सकते हो उसकी पिक्चर और वीडियो देख के, आप उसको फिजिकली टच करके आप उसको जस्ट वेरीफाई नहीं कर सकते हो। ईज ऑफ गोइंग ग्लोबल, देखो ट्रेडिशनल बिजनेस जो होता है वो ग्लोबली नहीं जा सकता, क्योंकि एक ही शॉप होता है, वो बहुत छोटा एक ही वेसिनिटी में उसके शॉप होते हैं, वो ग्लोबली बढ़ नहीं सकता। वेयर एज ई बिजनेस जो है वो ग्लोबली होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड चलते हैं। वेयर एज टेक सम एग्जाम्पल ऑफ लोकल वेंडर्स ऑफ योर लोकेलिटी, वो आपके उधर ही फेमस है, उनको शायद आपके अलावा और कोई दूसरे स्टेट में, दूसरे सिटी में कोई नहीं पहचानता होगा। गवर्नमेंट पैट्रोनेज, आपका ट्रेडिशनल बिजनेस में गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट कम होता है, जहां पे वेयर एज ई बिजनेस में बहुत ज्यादा होता है। नेचर ऑफ ह्यूमन कैपिटल, आपको बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा या फिर स्किल्ड वर्कर होने की जरूरत नहीं है। ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको एक अच्छा बिजनेसमैन होने की जरूरत है, आपको किस प्रॉपर इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। वेयर एज आपको ई बिजनेस में बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकली साउंड होना पड़ेगा, बहुत प्रोफेशनल होना पड़ेगा। और ट्रांजैक्शन रिस्क होता है, इसमें आपके ट्रेडिशनल बिजनेस में कम ट्रांजैक्शन रिस्क होता है, क्योंकि फिजिकली आप कस्टमर से मिलते हो और आप हैंड टू हैंड सेल करके कैश ले लेते हो। वेयर एज ई बिजनेस में आपका जो है रिस्क बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि पैसे आपको हमेशा ट्रांजैक्शन के बाद ही मिलता है। होपफुली यू हैव अंडरस्टूड दिस टू टॉपिक। स्टिल if you are having any problem, please do contact me. Thank you.